चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का थर्ड टॉपिक, दैट इज़ द एक्सक्रीशन। पहला टॉपिक हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, सेकंड रेस्पिरेशन पढ़ा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द मेथड प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस विच रिमूव metabolic waste outside the body. During the life process, lot of product form inside our body and that is not useful for our body. It means this time it is required by the body to let them out. For that purpose, inside our body there is a system called excretory system which remove the metabolic waste. Okay, all the life functions generate some waste product that is harmful for the body and therefore it is essential to remove these waste, and therefore we are having the excretory system. And what the excretory system consists of? Excretory system consists of a pairs of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and urethra. We will just discuss the functions of organ of the excretory system. Let us first think how excretion occur in unicellular. Simply, unicellular remove the metabolic waste by the process of diffusion due to the less complexity in their cellular structure. क्योंकि बॉडी में उसका कम्प्लेक्सिटी बिल्कुल कम रहता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके। बट इन मल्टी सेलुलर there is the complexity in the structure of the body and therefore it required a special group of organs to remove metabolic waste. We are having a special system called excretory system. ओके, सैंपल में आ गया समझ में कि जो मल्टी सेलुलर है उसमें स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन पता चल गया, सिंपल द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग वेस्ट आउटसाइड द बॉडी. नाउ द वेस्ट इज इंक्लूड द यूरिन, salt and the water. If urine, salt and water become excess in the body, it will damage the functioning or affect the function of our body. Therefore, this process excretion is essential. Let us move the further and know the different parts of the excretory system. Let us first think, there are pairs of kidney. Okay, this is the right kidney and this is left kidney. But when you see carefully, the right kidney is somehow smaller than the left kidney. Why? Because there is a lever above the right kidney. Why? Because there is a lever above the right kidney. Due to the presence of the lever, the size of right kidney is somehow smaller than the left kidney. But there is no differences in the functions. This cannot reduce the functioning of the pairs of kidneys. तो फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता, बट साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है. क्यों साइज में डिफरेंस है ये बता दिया, क्योंकि वो लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द लीवर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर दिस साइज इज somehow smaller. Okay, there is no problem of the smaller size of the kidneys. Confirm. Then the purpose of kidney is filter, remove the urea, extra salt, extra water inside the body. It means it is essential to maintain the pH of our blood. Because when blood is acidic, it cannot hold the much oxygen.
It means what the function of kidney is. The function of kidney is first remove the waste, second regulate the balance of water in the body and salt in the body, as well as regulate the pH. pH of blood must be slightly alkaline so that it can hold the oxygen from one place to another fastly. आपको पता है मोस्ट ऑफ द फूड जो होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि जो स्टमक से निकलता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है. नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइफ प्रोसेस का सेकंड वीडियोस देखना, न्यूट्रिशन इन एनिमल, पता चल जाएगा. स्टमक में एसिडिक होता है फूड, ठीक है. जब वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे उसको फिर से अल्कलाइन बनाया जाता है. कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना है कौन सा ऐसा एंजाइम्स है जो, कौन सा ऐसा चीज़ है जो एसिडिक फूड को अल्कलाइन बदल देता है. बट यहाँ पे ब्लड जो है उसको अल्कलाइन बनाना है, क्योंकि अगर ब्लड का अल्कलिनिटी, अगर ब्लड की जो बेसिसिटी है, बेसिक नेचर अगर 7.4 के आसपास रहता है तो उसकी कैपेसिटी 100% फिट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाएगा, जिससे हमारा जो ऑर्गन है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा. अब मैं बता दूं काम कैसे होता है. सबसे पहला, अब आप देखोगे यहाँ पे दो अलग अलग ट्यूब्स होते हैं, मोटे मोटे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है. एक को हम लोग बोलते हैं रेनल आर्टरीज और दूसरे को बोलते हैं रेनल वेन्स. अब आर्टरीज और वेन्स से कंफ्यूज मत होना. जनरली हम लोग पढ़े हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे तो आर्टरीज जो होता था प्योर सब्सटेंस को कैरी करता था, प्योर ब्लड को. लेकिन यहाँ उल्टा है, रेनल आर्टरीज क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके आता है, किडनी तक. और रेनल वेन्स जो है वो जो प्योर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है ब्लड, उसको वो लेके जाता है फिर कहाँ, सेल के पास तक. उल्टा हो गया ना. आर्टरीज क्या होता है, अनक्लीन ब्लड को लाता है, और वेन जो है, रेनल वेन जो है वो क्लीन ब्लड को वापस लेके जाता है. कंफर्म है, समझ में आ रहा है. आगे बढ़े, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का. अब देखो ये दोनों राइट और लेफ्ट किडनीज ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया. बट हाउ दे फिल्टर द ब्लड, विद द हेल्प ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. We will discuss in nephron, about the nephron in the second videos. Till then, just remember and know how function occur in the body. Okay. Then the right and left kidneys filter the blood with the help of nephron, millions of nephron. Okay. When nephron filter the blood, unclean blood enters into the kidney. Inside the kidney, nephron filter, it means separate the waste product and good one. And the pure blood after the cleaning is carried by the renal veins. अब ये कंफर्म होगा, renal veins क्या लेके जाता है, renal arteries क्या करके जाता है. किडनी का तो फंक्शन पता चल गया, 3 फंक्शन हमने बता दिया, ये तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. रेनल आर्टरीज क्या क्या ये पता चल गया, रेनल वेंस क्या क्या ये पता चल गया. कंफर्म हो रहा है रेनल वेंस और रेनल आर्टरीज का फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है. अब जो दिख रहा है ये 2 ट्यूब्स, ये जो 2 ट्यूब्स है वो है यूरेटर्स, पेयर्स ऑफ यूरेटर्स. देयर आर 2 यूरेटर्स कनेक्टिंग टू द किडनीज दैट कलेक्ट द यूरिन. द कलर ऑफ यूरिन इन मोस्ट ऑफ देम आर येलो. ठीक है. बहुत ज़्यादा येलो हो जाता तो हम लोग डर जाते हैं. क्यों डरते, कमेंट बॉक्स में बताना. अगर पता है क्यों डरते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना. ठीक है. येलो कलर होता है यूरिन का. क्या सॉल्ट बढ़ जाता है या वाटर कम हो जाता है? इट मीन्स जो वाटर का कंसंट्रेशन है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन किया जाता है हमारे ब्लड में, सो दैट ब्लड कैन कैरी दी right amount of oxygen. And the process of maintaining the balance of salt and the water is called osmoregulation. याद आया? Osmoregulation is the process of maintaining the level of salt and water in the blood, so that blood can carry the right amount of oxygen. Confirm है? आगे बढ़े. Then the ureter collect the urine from the pairs of kidneys
एंड स्टोर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्या कलेक्ट हो जाता है भाई? यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है यूरिन, ठीक है। और ये सभी जो आप देख लो मस्कुलर है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो जब यहाँ पे यूरिन कहाँ स्टोर हो गया? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल के, ठीक है। कंफर्म आ रहा? समझ में आ रहा है? जितने भी सिस्टम थे, यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन थे, उस सबका पार्ट समझ में आ गया। ये हमने सबसे सिंपल फोटो बनाया है, ठीक है। एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जो फोटो बना सकता है वो मैंने बना दी, ठीक है। और जो बुक में फोटो बना हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको देख लो, पूरे फंक्शंस पता चल गए आपको। किडनी दिखता कैसा है भाई? बीन शेप का दिखता है। कलर कैसा होता है? तो रेडिश होता है। कहाँ पे रहता है? तो एब्डोमेन में रहता है। कहाँ पे? आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के पीछे वाले बैकबोन के दोनों साइड में हमारा किडनी रहता है, ठीक है। आपको एक कमेंट में बताना है, किडनी के आसपास एक ग्लैंड होता है, ठीक है। उस ग्लैंड का नाम बताओ। अ ग्लैंड दैट इज लोकेटेड नियर द किडनी बट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट इन ब्रेन। दो ग्लैंड का नाम बताना है, किडनी के नज़दीक, नियर द किडनी, एंड इन द ब्रेन दैट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट इन द नियर बाय द किडनीज। कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आता है तो फटाफट, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो मैं बताता हूँ। ये सभी बातें हमने बता दी, इसको आपको कॉपी में लिख लेना है। कंफर्म हो गया? छोटा सा टॉपिक था, स्टार्टिंग पॉइंट था किस तरीके से हमारा यूरिन जो होता है वो फिल्टर होता है कहाँ पे? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर कैसे होता है वो भी लेके आएंगे, घबराने की बात नहीं है। फटाफट इसको कॉपी में लिख लो। पार्ट समझ में आ गया? कहाँ पे फिल्टर हुआ भाई? किडनी के पास पहुँचा है यूरिन, ठीक है। किडनी के पास पहुँचा ब्लड, उस ब्लड में से क्या निकाल दिया गया है? यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट, और कहाँ रख दिया गया उसको? कौन लेके आए? यूरेटर लेके आए, यूरिनरी ब्लैडर में रखा और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल गया। ऑस्मो रेगुलेशन एक वर्ड मैंने बता दिया, कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन लिखना मैंने बताया है। द मेंटेनिंग द concentration of salt and water into the blood. Why it is essential? So that the blood can carry the right amount of oxygen. समझ में आ रहा है? ओके। तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स कमेंट करने के लिए है, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब करने के लिए है, और लाइक का बटन लाइक करने के लिए। जो पसंद आए तीनों का तीनों कर लो। Thank you for watching.